Hello everyone, good afternoon everybody. I am Sanya Acharya from beautiful Spotless Kid team. I am sure all of you must be keeping good health. Hair loss, whether it is hair loss in men or hair loss in women, it's a common biological problem all over the world, not just in India. The importance of hair in enhancing the overall personality of a human being cannot be overestimated. Hair is the first thing that people notice about you. A great hairstyle can give you the personality boost you require in doing well in both personal and professional fronts. Hair loss, on the other hand, can prove to be a real disadvantage for many people. Many young boys and girls start losing their hair early in life, caused by a variety of genetic, environmental, and systemic factors. Hair fall can affect everyone, regardless of their country of origin. Thankfully, effective hair treatment can control and even reverse the hair loss process. We are here to know more about hair loss, its management, and more in detail about hair transplant from an expert. So let's connect today with our hair expert, Dr. Manjeet Gupta, live from Bilaspur, to make aware on hair loss in its management. Dr. Manjeet Gupta is a young and vibrant hair transplant surgeon at Derma. Welcome, doctor. Hi, am I audible? Yes, you're audible. Hi everyone. I'm Dr. Manjeet Gupta. I'm a consultant dermatologist at Apollo Hospital, Bilaspur, and I have my own clinic. And we run a hair restoration center named as Derma Clinic Advanced Skin and Hair Transplant Center at Bilaspur, Chhattisgarh, where we do routine hair transplant surgeries. So today I'm going to talk about hair loss and hair restoration. Basically, that is called as hair transplant. Now, hair loss is a polygenic inheritance disease, which means there are multiple reasons for hair fall. I'll be taking specifically different males I'll be talking differently, and in for females I'll be talking differently. So first, we'll talk about male pattern hair loss. Now, there are multiple reasons for hair loss in males. The most important reason for hair loss in males is a genetic pattern baldness. That is, genetic pattern baldness, what we can say is, which comes from maternal side of the family or either the paternal side of the family, where genes are involved. मतलब मदर फादर की तरफ से आने वाली बीमारी, या तो फादर के साइड में कोई गंजापन है, फादर या फोर फादर में, या मदर के साइड पे कोई गंजापन है, ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है हेयर लॉस का इन मेल्स. दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न बॉल्डनेस. वो एक ग्रेड के हिसाब से चलना शुरू होती है, विच नॉर्मली स्टार्ट्स एट 20 इयर्स ऑफ एज. 20 साल की उम्र से स्टार्ट होगी और बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेस होते होते ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक नॉर्वुड स्केल में के अकॉर्डिंग वो जाती है, और सामने से पीछे तक इंसान पूरा गायब हो जाता है बाहर ओवरऑल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो जो पैटर्न बॉल्डनेस है उसको अपन एग्जैक्टली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको अपन डीले कर सकते हैं, क्योंकि वो जीन लेवल पे काम चल रहा है, दैट इज इनसाइड योर बॉडी ओनली. तो उसको अपन बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. द सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्पिट होता है, जो कि होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस में, वो होता है हार्मोन. दैट इज टेस्टोस्टेरोन. जो मेन मेन हार्मोन होता है जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर मसल्स, बट दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेयर. जहां जहां टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म कम होता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उनके बॉडी में थोड़ा हेयर लॉस ज्यादा होता है. क्या होता है कि जब स्कैल्प में एक जो स्कैल्प के जो सेल्स होते हैं, जो स्कैल्प में हेयर होता है, हेयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट बेसिकली. एक पार्ट को हम इस्थमस बोलते हैं, एक को इनफंडिबुलम बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं डर्मल पैपिलरी सेल्स और डर्मल पैपिला. तो ये 3 पार्ट में नॉर्मली हेयर को अपन डिवाइड करते हैं. क्रॉस सेक्शन में हेयर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो जो हेयर फॉल है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें एक साथ आती हैं, उसके बाद पेशेंट्स को बाल झड़ना शुरू होता है. सी,
अपन अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। तो हम जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं कि उस एंजाइम को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जो एंजाइम कम होता है तो उसके कारण क्या होता है, हेयर फॉल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज डन बाय यूजिंग अ टैबलेट नेम्ड एज फिनेस्टेराइड और डूटेस्टेराइड, which normally is in 5 alpha hydroxylase 1 और 2 inhibitor। तो इससे क्या होगा मैडम, डीएचटी कन्वर्जन नहीं होता है, तो बाल जो है वो झड़ना कम हो जाते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है इन मेल पैटर्न बॉन्ड। सेकेंड जो कॉज होता है बॉल्डनेस का, वो होता है स्ट्रेस। जो टेंशन, तनाव, स्ट्रेस जो होता है नॉर्मली एक इंसान के लाइफ में, वो भी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है आपकी बॉडी को। सी व्हाट हैपेंस इज कि वॉट एवर यू आर टेकिंग, जब आप जो भी कुछ खा रहे हैं, एवरीथिंग गेट्स रिफ्लेक्सेस फर्स्ट इन स्किन एंड इन हेयर। आपको सबसे पहली चीज रिफ्लेक्शन जो होगा, जो आपकी बॉडी की इनर, आपका इनर बॉडी कितना हेल्दी है, उसका सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है स्किन में और हेयर में। Once you are insulting your body from inside because of any kind of sedentary lifestyle, what people are normally like consuming alcohol, taking, smoking cigarettes, and other kind of stuffs, which causes more hair fall and more sedentary. मतलब lifestyle is one of the most common cause for hair fall nowadays. What we can say, Right. stressful lifestyle and all. The Mhm. fourth reason for male pattern baldness में hair fall का जो normal होता है, that is water. The water that we are consuming. नॉर्मली क्या होता है मैडम, कई जगह पे नगर निगम का पानी आता है, नगर निगम के पानी में मतलब वाटर इज फुल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड उसके सॉल्ट्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर हमारे बालों में लगता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जो हेयर है वो 3 साइकिल होता है हेयर का, एनर्जिन, कैटोजन, टीलोजन साइकिल के फॉर्म में बोलते हैं। एनर्जिन इज द ग्रोइंग फेज ऑफ हेयर साइकिल, कैटोजन इज शेडिंग फेज ऑफ हेयर साइकिल, और टीलोजन फेज जो रहता है वो रेस्टिंग फेज होता है। बेसिकली ये प्रकार का हेयर साइकिल इस प्रकार से रन होता है। एंड नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हेयर साइकिल इज अराउंड 90 to 120 डेज। तो मिनिमम आपको 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू सी रिजल्ट इन हेयर फॉल। मतलब अगर आप हेयर फॉल में, ऐसा नहीं है अपन ने आज गोली खाना शुरू किया तो आपका हेयर फॉल रुक जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमको मिनिमम 3 to 6 मंथ्स के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो पानी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर अपन नॉर्मली घर पे अगर पानी हम देखें, तो अपन विल विल व्हेन वी बॉईल दैट वाटर, तो आप नीचे में एक देखेंगे एक परत आ जाती है, एक सफेद रंग की परत आ जाती है, दैट इज लाइक बेसिक सॉल्ट। जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो सॉल्ट दे आर यूजिंग, और कार्बोनेट सॉल्ट दैट दे आर यूजिंग, तो ये जो सॉल्ट है, जो पानी है, ये बहुत खराब होता है स्कैल्प के लिए। तो स्कैल्प में क्या होता है, इससे इरिटेशन डेवलप होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, डैंड्रफ डेवलप होता है, इट मे लीड टू हेयर फॉल, जिससे बाल और झड़ते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल से ग्रसित हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, नहाते समय आप बाल में हाथ लगा रहे हैं तो गुच्छे गुच्छे बाल आ जा रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या करें मैडम, थोड़ा सा अपने को नगर निगम के पानी की जगह अपन या तो पानी को बॉईल करके वॉश करें, वाटर को, तो उसे वॉश करें बालों को। इधर व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज आरओ वाटर। आरओ वाटर, एक्वा गार्ड वगैरह जिनके घर में है, वो आरओ वाटर यूज कर सकते हैं फॉर वॉशिंग योर हेयर्स। So this is how we can prevent hair fall. प्लस क्या होता है, जैसे कई मेल्स भी होते हैं जिनको टोपी पहनने का बहुत शौक होता है, बार बार टोपी पहनना, हेलमेट पहनना, इसको बार बार पहन के उतारना, दैट ऑल्सो कॉजेज हेयर को ट्रैक्शनल एलोपेशिया बोलते हैं। तो मेट्रो सिटीज में द मेजर वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर हेयर फॉल इज ट्रैक्शनल एलोपेशिया ऑल्सो। People are working, people are traveling here and there, and they are wearing helmet continuously, and the once they are removing and they are wearing again, this leads to hair fall। तो इसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो मेल्स में जो रहते हैं, ये मेजर कारण होते हैं बाल झड़ने के। There are all multiple small reasons also, which I'm not going to discuss. There's a list of small things which causes hair fall, but these are the major cause for the hair fall. Now, in female pattern, in female baldness, what happens is कि females में, नॉर्मली मेल्स में क्या होता है, सामने से बाल झड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे 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 जब बढ़ता जाता है, फिर एक चांद आता है, चांद को फिर ये सब मिक्स हो जाता है, मैच होता है, खराब हो जाता है, मतलब पूरा ओवरऑल एक बॉल्डनेस आ जाती है। फीमेल्स में क्या होता है, फ्रंटल हेयर लाइन इज ऑलवेज प्रिजर्व। सामने की जो बाल रहते हैं वो हमेशा प्रिजर्व रहते हैं। उनको गंजापन इन सेंटर से स्टार्ट होता है, मेल्स में साइड से स्टार्ट होता है, फीमेल्स में सेंटर से स्टार्ट होता है। तो सेंटर से बाल झड़ना शुरू होंगे इन फीमेल, धीरे 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 गंजापन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एंड पैटर्न बॉल्डनेस हो जाती है। तो फीमेल्स में भी कई बार इस प्रकार से बॉल्डनेस आती है। उनकी भी 3 ग्रेड में उनको क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें ग्रेड 1 to 3 के हिसाब से अकॉर्डिंगली वी ट्रीट टू द पेशेंट्स।
मतलब इनके मतलब फीमेल्स में हेयर फॉल के जो मेजर कारण होते हैं वो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इज आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया। अनीमिया जो होता है जब हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, और ईदर यू आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड एनी काइंड ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, तो उसके कारण जो है फीमेल्स में मेजर जो है वो बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है, बाल इंटरमिटेंट, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस हेयर फॉल होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, उसके कारण जो बाल झड़ता है, दैट इज विच इज विच वी कैन अगेन, मतलब द हेयर दैट यू लूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन गेट इट बैक ऑटोमेटिकली, यू विल बॉडी विल वंस योर बॉडी विल स्टार्ट रिकवरिंग, यू विल अगेन गेट दोज हेयर्स बैक। तो उसको बोलते हैं हम क्रोनिक टिलोजन इफ्लूवियम, मतलब क्रोनिक कंडीशन है प्रेगनेंसी, क्योंकि 9 मंथ तक कंटिन्यू हो रही है, उसमें बाल झड़ेगा आपका, बट यू विल अगेन रीगेन योर हेयर बैक। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। जैसे हमको कोविड हुआ, अभी बहुत देखा, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ। फिर हमने देखा कि कोविड के साथ साथ अपन बात करें, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, किसी भी प्रकार का इंसल्ट होता है अगर, तो बॉडी से बाल झड़ते हैं, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स। तो इस इन सब चीजों को अगर अपन देखें तो इसको क्रोनिक टिलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं, which is reversible condition. Once your body comes back to normal, you start eating healthy, everything comes back to normal. तो ऐसा कुछ नहीं होता है फीमेल्स में थोड़ा हेयर फॉल, कई बार पैटर्न बॉल्डनेस जो मेल्स में होती है वो फीमेल्स में भी होती है, बहुत रेयर कॉज रहते हैं लेकिन होती है। उसमें फिर थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट जो रहता है वो डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज। तो वो सब चीजों को अगर अपन करना चाहें तो उसको अपन ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, डिफरेंट है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्मल हेयर फॉल जो रहता है फीमेल्स में, इट इज इजिली कंट्रोलेबल। थोड़ी सी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, नॉर्मली अपने को आयरन का लेवल देखना चाहिए, फॉलिक एसिड देखना चाहिए, B12 लेवल देखना चाहिए, फिर अपने को विटामिन डी लेवल देखना चाहिए, कैल्शियम लेवल देखना चाहिए। तो ये बेसिक लेवल्स हैं जिसको अपने को इवेलुएट करना चाहिए, क्योंकि अपन जब तक कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे तब तक अपन वी आर गिविंग दीज वॉट एवर मेडिसिन वी आर गिविंग टू द पेशेंट, दीज आर ऑल सपोर्टिव थेरेपी। The main problem is the cause. What is the cause of the hair fall? First, we need to understand the cause, basic कारण क्या है हेयर फॉल का, then we should treat it accordingly. तो उसके हिसाब से अगर अपन थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करें, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जैसे डाइट मॉडिफिकेशन में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट टेकिंग थोड़ा बहुत जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गई, गुड़ हो गया, थोड़ा अंडा, अगर कोई वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा खा सकते हो उबला हुआ रोज, 8 तो 10 तो बादाम को अपन भिगा लिए, मूंग होती है, मूंग को अपन ने भिगा लिया, मॉर्निंग में अंकुर बन गया, अंकुर में थोड़ा सैलड डाल के खा लिया। तो प्रोटीन इंटेक अपने को बढ़ाना चाहिए, नॉट नेचुरल वे ऑफ प्रोटीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटीन पाउडर, जैसे आजकल के नए लड़के रहते हैं जो नॉर्मली स्टार्ट कर देते हैं प्रोटीन बढ़ाना है तो प्रोटीन पाउडर, या जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पाउडर डज नॉट हार्म मच, लेकिन जो सस्ती क्वालिटी के हैं, कुछ कंपनियां जो चीप में आते हैं 1000-2000 रुपए में, जो प्रोटीन पाउडर जो लड़के लेते हैं बॉडी बनाने के लिए रैपिड, उससे भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो अपने को नहीं लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, जितना अपने को नेचुरली मिलता है उसने अपने को प्रोटीन को बढ़ाना है। एक आध दो कटोरी एक्स्ट्रा दाल पी सकते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन डू, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट पार्ट की अपन बात करें हेयर लॉस में, तो अपने को बेसिक, अपने को पहले तो बायोटिन जो है मेन हार्मोन रहता है, मतलब विटामिन रहता है, विच इज नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ। तो अपन को बायोटिन देना पड़ता है पेशेंट को, बायोटिन अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशंस इंक्लूडिंग कैल्शियम पेंटोथेनेट एंड ऑल। आजकल प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रॉब्लम, कैनाइटिस, और बहुत सारी सफेद बाल होना अचानक से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमको कैल्शियम पेंटोथेनेट 200 मिलीग्राम के स्टार्ट करना चाहिए, मेडिटेन दे सकते हैं अपन लगाने को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे अपने को एटलीस्ट चीजों को अपन डिले कर सकते हैं। एकदम सोल कॉज हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला इंसल्ट अगर बॉडी को होता है तो बाल ही सबसे पहले चढ़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेसिकली 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकेशंस लेना चाहिए। एफडी अप्रूव्ड बहुत कम चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे मिनॉक्सिडिल है, पीआरपी है, फिनेस्टेराइड है, टूटेस्टेराइड है, उसके अलावा थोड़ी बायोटिन सप्लीमेंट्स एंड दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच आर एफडी अप्रूव्ड।
इसके अलावा जो भी मार्केट में जो भी क्लेम करते हैं, कोई बोलता है ये इंदु लेखा लगाइए इससे बाल बढ़ जाएंगे, कोई बोलता है कि ये लगाओ उससे बाल बढ़ जाएंगे, तो नथिंग इज बीन प्रूवन, किसी के पीछे कोई रिसर्च बैक डाटा नहीं है, सब अपने मन का क्लेम कर रहे हैं। तो वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। तो इसमें थोड़ा सा पैटर्न हेयर लॉस को स्पेसिफिकली कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। हम ट्रीट कर भी रहे रहते हैं पेशेंट को, सब चीजें कर भी रहते हैं, फिर भी बॉल्डनेस बढ़ रही रहती है, क्योंकि उसमें जीन्स आर इन्वॉल्व, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और जो भी चीजें हैं जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि पैटर्न बॉल्डनेस को अपन रिवर्स करेंगे हम, जैसे ट्राया एंड ऑल, तो दीज आर ऑल क्लेमिंग फॉल्स, दीज आर ऑल फॉल्स क्लेम, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी। एक बार बाल झड़ गया है तो जॉनसन, जब तक अपन जड़ निकाल के, देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो देखिए, अगर एक इंसान गंजा हो गया है गंजापन अगर मेल्स में आ गया है, पूरा चांद दिखने लगा है, तो अपन उस पे कुछ भी कर लें, हम बाल वापस नहीं ला सकते अपार्ट फ्रॉम ट्रांसप्लांट। व्हाई दिस आई एम सेइंग, क्योंकि देखिए पौधा तभी उगता है जब पौधे की जड़ होती है। आप सीधा बंजर जमीन में बगैर पौधे की जड़ डाले आप कितना खाद पानी डाल लो, चाहे आप मेडिसिन लगा लो, चाहे आप पीआरपी कर लो, चाहे कुछ कर लो, यू वोंट बी गेटिंग रिजल्ट्स। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड आपको मन की सेटिस्फैक्शन में कि भाई हम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क अपार्ट फ्रॉम हेयर रिस्टोरेशन। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। तो ऑलवेज सी फॉर की काइंड ऑफ बॉन्डनेस दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम, कितने लेवल पे अपन पहुंच चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही एक ट्रीटमेंट अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर कराना चाहिए। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि आजकल हर कोई जैसे डेंटिस्ट भी हो गए हैं और बीएमएस आयुर्वेदिक ये सब भी करने लग गए हैं। तो ये कोई इट्स चीप एंड इजी मनी फॉर देम, तो वो करते हैं। तो दे डोंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, पर थोड़ा बहुत दे, तो दैट्स हाउ दे आर डूइंग। तो आप कभी कभी भी सोच समझ के कराएं या सोच समझ के जाएं कहीं भी हेयर के लिए स्पेसिफिकली, तो ऐसा है। और रही बात, अगर हम हेयर रिस्टोरेशन की बात करें मैडम, तो हेयर रिस्टोरेशन का ऐसा रहता है कि it's a basic procedure. There are three kinds of procedure that we do in hair restoration. First is follicular transfer technique, in which what we do is we cut a part of skin, एक चमड़ी का टुकड़ा काटते हैं, उसको हम वहां से बाल निकालते हैं, गड्ढा बनाते हैं और फिर बालों को लगाते हैं। तो उसमें एक पीछे एक दाग रह जाता है, क्योंकि हम सूचर मारेंगे तो एक लाइन रह जाती है। तो जब पेशेंट बाल छोटे करता है तो उसको समझ में आता है दैट टेक्निक इज लाइक नाउ ऑब्सोलीट नाउ डेज, तो उसको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर ट्रांसफर टेक्निक। The second technique that we use in hair restoration is follicular extraction technique, FUE है। FUE में other bifurcations है, अलग अलग चीजों को यूज करके अपन सफायर FU टेक्निक से सफायर FU हेयर रिस्टोरेशन करते हैं। फिर अगर अपन करना चाहें तो डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन के थ्रू FUE हेयर रिस्टोरेशन करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी कैन डू आफ्टर विद FUE। FUE is the basic procedure, follicular extraction. We are extracting a follicular unit. A follicular unit is like bunch of hair, उसमें एक से लेके 5 तक बालों के गुच्छे होते हैं। हम एक एक गुच्छे को निकालते हैं। We use local anesthesia. Local anesthesia मतलब we are numbing this much area, we are numbing this much area. पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं सर्जरी में, हम पेशेंट को सिर्फ लोकल एरिया को नम करके वहां से बाल को एक्सट्रैक्ट करके पहले गड्ढा बनाते हैं, फिर एक एक फॉलिकुलर यूनिट को डालते हैं। DHI मतलब हम डायरेक्ट निकालते जाते हैं, डालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो उसमें बड़े सेशंस आर नॉट पॉसिबल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर इज आल्सो वेरी हाई। तो अपन थोड़ा सा प्लेन बेसिक FUE में अगर अपन बात करें सफायर FUE में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर इज आल्सो गुड एंड इट नॉर्मली टेक्स अराउंड 6 to 8 hours, 8 to 10 hours डिपेंडिंग on the grade of baldness to perform surgery. So this is basic about hair restoration. There's no much side effect of any kind of side effect during surgery or post-operative surgery. Few things happens like patient develops swelling over their forehead. Patient may have numbness over their forehead for at least 1.5 months, 2 months of time. Patient may have pain post-operatively. So these are the basic things that are normally happen, but there's no long-term side effect of surgery. All the short-term events that usually happen. तो ऐसा रहता है मैम बेसिकली। और हेयर ट्रांसप्लांट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट once we do all kind of medical line of management. First, I see the most important thing in hair treatment is कि hair restoration is always a last option. Once we fail with every other option available for hair to treat, we don't go directly for hair restoration. And few matlab there are few things patient should always know and doctor should always know before treating a hair patient, as it all depends upon grade of baldness and the sole cause of the hair loss. उसके कारण ही उसके बाद ही we can treat properly, and when everything fails then only we go for hair restoration.
तो ऐसा नहीं है कि अपन पहली बार में ही सीधा ट्रांसप्लांट कर देते हैं. फर्स्ट वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट. Once medical line of management is okay, if it is working, if it's not working, then we should go for the surgical line of management. It is always an option with the patient to go for transplant. That is the last and definitive option. If patient want direct result, he can directly go for hair restoration. But if patient wants to go for medical line of management, you should always go for first for medical line of management. There are other medical line of managements available. First is PRP. What we do in PRP is we extract 10 to 20 ml of your blood, उसको centrifuge करके उसमें से growth factor we extract and we directly inject growth factor into your scalp. तो सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले तो जो चीजें खून के थ्रू आपकी बॉडी से आपके बालों को नहीं मिल पा रही हैं, उसको अपन खून से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके सेंट्रीफ्यूज करके ग्रोथ फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करके स्कैल्प में डायरेक्ट दे रहे हैं. That is an FDA approved treatment. तो उसके काफी अच्छे results है, promising results are there in PRP. But I would like to say कि it all depends on patient to patient. Normally 70% patient responds with PRP and 30% still don't respond for PRP. So what happens, the basic problem is कि we don't have a definitive treatment for hair loss. So we can delay things, we cannot cure things. So that's वो अगर ऐसा होता तो आज लोग गंजे नहीं होते थे. आज 20% population in India is suffering from hair loss and are bald. तो उसके लिए क्या है, अपने पास definitive treatment नहीं है. Definitive treatment is hair restoration only. And it's a covering procedure. Hair covering procedure मतलब scalp को cover करने का procedure है. जो घनापन था आपका, तो वो आप किसी भी चीज से एकदम नहीं ला सकते हैं. There are multiple sessions of hair transplants are required to achieve the density. तो अपने को हमेशा बालों की केयर करनी चाहिए. Once you start losing your hair, then only कि we'll take care of our scalp and we'll take care of our hair, ये गलत thought है. आपको हमेशा स्किन और हेयर, these are your crowning glory है, आपके सिर का क्राउन है. इनको अगर केयर करेंगे और अच्छे से रखेंगे बेसिकली, तो ये बहुत अच्छे से रहेंगे आपके साथ और टिकेंगे. अगर आपने इनको इंसल्ट करना शुरू किया या आपने बिल्कुल केयर नहीं किया और आप इस लेवल पे आके, जैसे आपके बाल झड़ रहे हैं कंटिन्यूअसली 2 साल से 3 साल से और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आप घूम फिर के आए कि भाई अब तो मैं टकला होने वाला हूँ, गंजा होने वाला हूँ, तो फिर हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते टू डू. तो आपको क्या है, शुरू से केयर करना चाहिए अपने बालों की स्पेसिफिकली. तो आप जितना अच्छे से आप केयर करेंगे, जितना अच्छे से आप डाइट लेंगे, द मोर प्रॉपर नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल लाइफस्टाइल यू विल लिव. रात को 8 से 9 घंटा बराबर सोइए, नींद अच्छे से पूरी पूरी लीजिए और किसी प्रकार की मेडिसिन के भरोसे ना रहिए. आधे घंटा 1 घंटा यू कैन गो फॉर योगा एंड फॉर मेंटल पीस एंड ऑल दीज आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ हेयर फॉल. क्योंकि हमारे पास मैडम सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं टू गिव. कारण हमारे पास बहुत सारे हैं और हमारे पास कुछ चीजें ही हैं जब टू डू. तो अपन लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके अपनी बॉडी को काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है एज कम्पेयर टू टेकिंग मेडिकेशन. डायरेक्टली हम मेडिसिन के पीछे भागेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है ही नहीं, है ना. तो अपने को क्या करना चाहिए, दोनों चीजें ट्राई करनी चाहिए. आपने थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाइए और केयर कीजिए. दैट इज इट. राइट, तो यानी कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से रखिए, अपनी केयर करिए. वेरी वेल आंसर्ड सर. आपने बहुत सारे अच्छे तरीके से हमें बताया है कि हम किस तरीके से अपनी हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए. सो नाउ वी हैव अ लाइव व्यूअर्स क्वेश्चन सर, जो हमारी लाइव अभी क्वेश्चंस आ गए हैं. सो देयर इज अ क्वेश्चन आस्किंग हाउ लॉन्ग इज द रिकवरी फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. सी देखिए, व्हाट हैपेंस इज कि आपके जो प्राइमरी घाव रहते हैं पीछे जो अपन निकालते हैं जब, तो जो प्राइमरी घाव हैं वो भर जाते हैं आपके विद इन 7 to 20 days. 7 से 20 दिन में आपके घाव भरना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे से बाल आना शुरू हो जाते हैं. जो डोनर एरिया जहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं बाल, वो ठीक हो जाता है. रेसिपिएंट एरिया की रही बात, उसको अपन को आफ्टर 5 days ऑफ सर्जरी वी आर सपोज टू स्टार्ट वॉशिंग एंड ऑल. डोनर को हम नेक्स्ट डे से वॉश करते हैं सर्जरी के, रेसिपिएंट को हम 7 दिन बाद करते हैं. तो भी 20-21 दिन लगता है ओवरऑल पूरा हील होने में, जिसमें आपको पता चलना बंद हो जाएगा पेशेंट को कि ही अंडरवेंट एन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी. पर क्या होता है मैडम, जो खींचने की क्षमता है, सी यू टच समवन, यू फील. तो वो जो टच सेंसेशन होता है, दीज आर डन बाय क्यूटेनियस नर्व्स. जब हम सर्जरी करते हैं तो मैडम वो सारी नर्व्स जो है वो ट्रांजेक्ट हो जाती है, कट जाती है. तो उसको डेवलप्ड होने में 1.5-2 महीना लगता है.
तो पहले क्या होगा, प्राइमरी हीलिंग होगी, फिर सेकेंडरी हीलिंग होगी, फिर टर्सरी हीलिंग होगी। प्राइमरी हीलिंग मतलब पहले बैरियर बनेगा। सेकेंडरी हीलिंग में क्या होगा, उसके नीचे कोलाजन टिश्यू वगैरह बनना शुरू होगा, इलास्टिन बनना शुरू होगा। तीसरे में नर्व डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो फुल रिकवरी के लिए 1.5 से 2 महीना लगता है। तब तक कहीं पर्टिकुलर जगह पे आप टच कर रही हैं तो महसूस कम होना या थोड़ा बहुत पेन होना, ये सब हल्का पर्टिकुलर पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है आफ्टर हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। पर जो खींचने की क्षमता है एकदम, जैसे ऐसे अपन टच कर रहे हैं पेशेंट को और वी आर स्ट्रेचिंग आवर स्किन, तो उससे क्या होगा मैडम, उस चीजों में उसको आने में थोड़ा टाइम लगता ओके ओके सर, एक सवाल है कि क्या डैंड्रफ हेयर लॉस कॉज करता है? डज डैंड्रफ कॉज हेयर लॉस? है। डैंड्रफ मैडम एक बहुत ही मेजर कारण है हेयर लॉस का। डैंड्रफ के कारण क्या होता है, जब प्रोलॉन्ग डैंड्रफ रहता है तो स्कैल्प जो रहता है उस, देखिए किसी भी चीज को हवा चाहिए जीने के लिए, ठीक है। आप जी चमड़ी में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है या बहुत ज्यादा कुछ चीज आएगी, पड़ी रहेगी, तो क्या होगा उससे मैडम, इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब इरिटेशन स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इरिटेशन इज इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेम होगी चमड़ी। वंस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ तो पेशेंट विल डेवलप डर्मेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन के होने के कारण बालों में तकलीफ हो। उसके बाद क्या होगा मैडम, पेशेंट विल स्टार्ट लूजिंग हेयर, धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू होंगे, पर्टिकुलर एरिया पे छोटे छोटे दाने आने स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली डैंड्रफ डू डज लीड्स टू हेयर लॉस। बिल्कुल, तो डैंड्रफ को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए। कीटोकोनाजोल और क्लिम्बाजोल का कॉम्बिनेशन यूज वी कैन डू, और इधर प्लेन कीटोकोनाजोल भी अपन यूज कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल का शैम्पू आता है, उसको अपने को हफ्ते में 2 बार यूज करना चाहिए। हमेशा शैम्पू को 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ना पड़ता है। जैसे नॉर्मली पेशेंट धोते हैं, हाथ में लिया, फट से सिर में लगाया, फट से धो लिया, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टैक्ट पीरियड थोड़ा सा ड्रग का ज्यादा होना चाहिए, तो शैम्पू का भी कॉन्टैक्ट पीरियड हैज टू बी बिटवीन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स। आप सर में झाग बना के सिर में लगा के छोड़ दीजिए। अगर किसी को बहुत इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, दाना हो रहा है या डैंड्रफ बहुत है, तो आप लगा के उसको छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए 15 मिनट के बाद। ऐसा हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, जिससे आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे ज्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। right sir. Sir, Rahul Sisodia is here and he's asking, does your diet has a relation with the quality of hair? मैडम, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज ये बोली कि ये सारी जो चीजें हम करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर ट्राइंग टू गिव टू द पेशेंट, इट्स ऑल सपोर्टिव थेरेपी। Right. Hmm. वो चीज हम खाएंगे, जिस प्रकार का हेल्दी हम खाएंगे, जितना हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, जितना हम नॉर्मल फूड खाएंगे, अच्छा हेल्दी डाइट खाएंगे, उससे क्या होगा, उससे आपके बालों को अच्छा लस्टर टेक्सचर मिलेगा। बाल जो होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, टूटेंगे नहीं, एंकरेज मिलता है, नीचे से प्रोटीन रहती है, उसको पकड़ के रखते हैं, तो वो सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल जड़ मजबूत होती है। अगर अपन बात करें तो जड़ जब मजबूत होती है तो पौधा भी एकदम मजबूती से खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। सेम सिंपल लैंग्वेज में ट्राइंग टू से, तो डर्मल पैपिलरी सेल्स के आसपास जो सीमेंट रहता है, सारी चीजों के लिए एंटीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो डेवलप करती है बॉडी, वो उसको कम करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डाइट से हो सकता है वो, योगा से हो सकता है वो, हाफ एन आवर टू 1 आवर की एक्सरसाइज से हो सकता है वो। जितना अपन खा रहे हैं, अगर अपनी लाइफस्टाइल नहीं भी सही है, अगर हम स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अपना थोड़ा सा डेंटल लाइफस्टाइल चेंज भी है, तो भी अपने को रोज थोड़ा सा डाइट में चेंजेस लाने चाहिए और हाफ एन आवर टू 1 आवर एक्सरसाइज करना चाहिए टू रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, जो Right. अपन नॉर्मली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो बने हैं, उसके कारण हेयर फॉल ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली डाइट मॉडिफिकेशन से बहुत ज्यादा हेयर फॉल में असर होता है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल रुकता है। तो अपने को डाइट तो बिल्कुल अच्छी करनी चाहिए। Right. So डाइट तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि सर ने हमें बताया। सर, नेहा चौधरी is here and she is asking, do shampoos make hair weak? इट ऑल डिपेंड्स कि मैडम व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू वी आर यूजिंग। पीएच होता है सब चीजों का। अगर पीएच बैलेंस है चीजों में, अच्छी क्वालिटी का शैम्पू अगर यू आर यूजिंग, तो सब चीजें अलग अलग वेरिएंट और सब आजकल इतने मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते मैडम कि कोई कोई शैम्पू ड्राई करता है, कोई शैम्पू नहीं नहीं करता है ड्राई। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, क्वालिटी ऑफ देयर हेयर और टेक्सचर ऑफ देयर। ये सारी चीजें अलग होती हैं हर पेशेंट में, हर चीजों में हर अलग क्वालिटी का हेयर होता है। तो वो सब डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली कि आपको क्या, कोई शैम्पू आपको ड्राई कर सकता है, कोई शैम्पू आपको ड्राईनेस नहीं कर सकता है।
तो इट्स ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू टॉक अबाउट। ऐसा अपन नहीं बोलेंगे कि हर शैम्पू आपको ऐसा करता है, ड्राई करता है। कुछ शैम्पूज नहीं करते हैं ड्राई, तो आप वो वाले ट्राई करके अगर देखें थोड़े अच्छी क्वालिटी का, तो आपको तकलीफ नहीं। Right, he said, sir, Aarti Meena is here and she is asking, are dry scalp and dandruff the same thing? नहीं मैडम, ड्राई स्कैल्प में ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ में बेसिकली खपली निकलती है। खपली मतलब स्कैल्प में से स्केलिंग होगी बेसिकली। तो हाँ, ऑब्वियसली जितना ड्राई होगा उतना ज्यादा खपली निकलेगी। और डैंड्रफ जो होता है वो एक छोटा सा एकदम माइल्ड वेराइटी का फंगल इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में। उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्लेयर अप हो जाता है जब अपन बहुत दिन तक बहुत ज्यादा ऑयलिंग करते हैं, या बहुत रूटीन में अपन बाल नहीं धोते हैं। जैसे हफ्ते में 2 बार बाल धोना चाहिए मिनिमम। आप 5-5 दिन 6-6 दिन एक हफ्ते में बाल नहीं धो रही हैं कई फीमेल्स, क्योंकि बाल बड़े हैं, सूखने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग टू डू ऑल दिस। तो उससे क्या होता है मैम, सीबम पूरा रिटेन हो जाता है। जब सीबम रिटेन होता है मतलब जो पसीना निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऊपर के लेयर में वो सब सीबम रिटेन है, उसमें एक फंगस का डेवलपमेंट हुआ। उसको वो सारा ट्रांस एस्टर फैटी एसिड मिला फूड के फॉर्म में। फंगस उसको खाने पीने को, और आपने तेल लगा के दे दिया। देखिए, तेल लगाने का भी कोई कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब अगर आप जीवन भर भी सिर में तेल नहीं लगाएंगे किसी प्रकार का, तो भी आपके बाल खराब नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी का काम है, स्कैल्प का काम है तेल निकालना। तेल ऑटोमेटिकली बालों को मिल जाएगा। आप 2 से 3 दिन आपने मत लगाइए तेल। मतलब नारियल तेल लगाना या कुछ करना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मैडम। जो मेन चीज होगी, जो आप ओरल इंटेक करेंगे, जो आप हेल्दी चीजें करेंगे, वही आपके बालों को लगेगी। आप ऊपर से कितना भी थोप लीजिए, तेल लगा लेती हूँ, दही लगा लेती हूँ, ये अंडा लगा लेती हूँ। देखिए, इन सब चीजों से ऊपर का हार्ड केराटिन थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो सकता है, पर जो चीजें जड़ में होंगी उसी से बाल को ग्रोथ मिलेगी या बालों को मजबूती मिलेगी। तो ऊपर से अपन क्या क्या लगा लें, ये कंडीशनर लगवा लिया, केराटिन करा लिया, फलाना करा लिया, कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें नहीं होती है मैडम। जो आपके हेयर में रिफ्लेक्ट वही चीजें होंगी जो आप ओरली खाएंगे और जैसे आप लाइफस्टाइल जिएंगे। बाकी कुछ भी करा लीजिए, कोई ब्यूटी पार्लर में जाके करा लीजिए, आपके हेयर का टेक्सचर चेंज नहीं होगा मैडम। थोड़ा बहुत कंडीशन चेंज हो सकती है। किसी का एकदम कड़क बाल है तो थोड़ा पतला हो सकता है। स्ट्रेट करा लिया तो आपने स्ट्रेट रहेगा कुछ टाइम बाद। लेकिन जब हेयर की ग्रोथ होती है तो स्ट्रेटनर भी, जब आप स्ट्रेटनिंग भी कराते हैं, तो वो भी परमानेंट नहीं होती है। 2 से 3 महीने तक ही काम करती है, उसके बाद फिर आपको फिर से स्ट्रेटनिंग कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो वैसा रहता है। तो जो अंदर से हो रहा है वो अंदर से ही होगा, ऊपर से कोई कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है मैडम। Yes, very well answered, sir. And Santosh Bhatia is here and he's asking, what is the best way to prevent heat damage? देखिए मैडम, हीट डैमेज तभी होता है जब अपन हीट में आयरनिंग कर रहे होते हैं, मतलब बालों में आयरन का यूज कर रहे रहते हैं। जो आयरन स्ट्रेटनर वगैरह यूज करती हैं फीमेल्स एंड मेल्स, वो अगर अपन यूज कर रहे हैं, उसी के कारण डैमेज होगा। देखिए, बाल पूरे केराटिन के बने हुए हैं। केराटिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन को कभी भी आप हीट करेंगे तो वो डीनेचुरलाइज होगा, वो टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि प्रोटीन का डीएनए से बना हुआ है। प्रोटीन एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसमें आपने हीट दिया, वो हेलिक्स स्ट्रक्चर अनवाइंड हो गया, खुल गया, खत्म हो गया, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, पतले होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आइडियली तो ये कहना है कि या तो इधर यू यूज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हेयर स्ट्रेटनर, जो कि 12-15 हजार के डायसन के आते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल रहता है मैडम। मतलब जो वार्म हीट रहेगी, जो रॉड्स रहेंगे वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हीट कर रहे रहेंगे। वो आपकी स्कैल्प के अकॉर्डिंगली वो बना के देते हैं। तो दैट इज गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अपन नॉर्मल कोई भी स्ट्रेटनर यूज करेंगे या हीट डैमेज करेंगे, तो डेफिनेटली बाल खराब होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटनिंग योर हेयर इज गुड फॉर योर हेयर। ये नहीं करना चाहिए। बहुत कंटिन्यूअसली स्ट्रेट करते रहेंगे आप, ये सब करते रहेंगे, तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो हीट डैमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है एज सच। स्टॉप यूजिंग ऑल दोस थिंग्स इंस्टेड ऑफ हीट डैमेज। मतलब कोई सन से आपके बाल झड़ते नहीं है। बाल तो देखिए, काले बाल रहते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बालों को। जितना लाइट वो एब्जॉर्ब करेंगे उतना रिफ्लेक्ट भी करते हैं। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडीज एमिट भी करती हैं, एब्जॉर्ब भी करती हैं उतने ही। तो वही ब्लैक बॉडी का काम करता है। तो हीट डैमेज सन से नहीं होता है बालों में कभी। हमेशा यूज करने से, ये स्ट्रेटनर एंड ऑल यूज करने से होता है नॉर्मल। तो इसको अपन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का इधर यूज करें या तो बंद कर। Right, sir. So there's a question: do home remedies work? या डू हाँ, यस डेफिनेटली होम रेमेडीज वर्क। होम रेमेडीज मतलब जैसे मैंने बोला आपको कि दही लगा सकते हैं, अंडा लगा सकते हैं।
ये सब चीजें डैंड्रफ कंट्रोल करती हैं, स्कैल्प को क्लीन करती हैं। तो ये सारी चीजें भी हेल्प करती हैं बालों को रिटेन करने में, बचाने में। तो बिल्कुल डेफिनेटली होम रेमेडीज डू वर्क, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि नहीं कर रहे हैं, आप हफ्ते में एक बार करना चाहें। कर्ड इज वेरी, मतलब जो फंगस का डेवलपमेंट है, जो फंगस की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में कर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें भी लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, फंगल पॉपुलेशन कम होती है तो अपन स्कैल्प में लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका स्कैल्प रहेगा, क्लियर रहेगा। कई बार मेडिकेशन से फंगस नहीं जाता, चिबोरिया ठीक नहीं होता, लेकिन ये सब होम रेमेडी से ठीक हो जाता है। तो ये सब अपन कर सकते हैं मैडम। बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी कैसे अडाप्ट कर रही है, तो उसको अपन डेफिनेटली होम रेमेडीज में, स्पेसिफिकली होम रेमेडीज ये है मैडम की ईट गुड। Eat good. That is the home remedy. सर नीतू सिंह is here और वो पूछ रही है सर मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मैंने जब से सिटी चेंज की है 1 मंथ से ज्यादा हो गया है सर, तो क्या पानी की खराबी से हो सकता है? मैंने तो आपको बताया मैडम कि पानी में जो हार्ड वाटर यूज करते हैं मेट्रो सिटीज में स्पेसिफिकली, पानी पाइप में जा रहा है, उसको क्लीन रखने के लिए उनको वो चीजें डालनी पड़ती हैं ताकि उसमें कोई बीमारी ना फैले। तो वो पानी हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर जैसे ही आप यूज करेंगे इधर बाल धोने के लिए या पीने के लिए भी बहुत ज्यादा, अगर अपन हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो उससे मैडम बाल झड़ते हैं डेफिनेटली। तो आप उसके लिए दूसरी रेमेडी ये है कि आप या तो आरओ वाटर यूज कीजिए बाल धोने के लिए, या तो पानी को गर्म करके गर्म पानी को छान लीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए। इस इन सब तरीकों से आप वो जो तकलीफ है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर वो नहीं होगी। और डेफिनेटली वो तो आपका मेन कॉज रहता है, कल्प्रिट है फॉर हेयर लॉस, तो वो नहीं करना चाहिए। Right, sir. Sir, so who should go for a hair transplant? मैडम इट ऑल डिपेंड्स। ऐसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस में जो रहते हैं, मैंने आपको ये बताया मैडम, जहाँ गंजापन आ गया है, पूरी तरीके से गंजापन आ गया, तो वहां आप कुछ भी करके देख लीजिए, कोई कुछ नहीं हो सकता। हमको जड़ सहित पौधा निकालना पड़ेगा और जड़ सहित पौधा डालना पड़ेगा ताकि उस बंजर जमीन में पौधा है। समझ रहे हैं? बेसिक लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे तेल लगा लीजिए, चाहे पीआरपी, चाहे हेयर मीजो, चाहे लाइट लेजर थेरेपी, चाहे आजकल मीजो कॉकटेल्स आते हैं वो सब ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब हेयर वोंट ग्रो अगर गंजापन आ गया। देखिए आपका स्कैल्प विजिबल तब होना स्टार्ट होता है व्हेन योर डोनर या रेसिपिएंट डेंसिटी, सिर के डेंसिटी जो है इज लेस देन 30%। मतलब 30% से कम जब बाल रह जाते हैं, 40 से 30% से बाल जब कम रह जाते हैं तब गंजापन स्टार्ट होता है दिखना। तब तक ऑलरेडी डिले हो चुकी है चीजें। अगर आप उस समय गंजापन को नहीं रोकेंगे तो वो 30 से 50 हम कर सकते हैं, 50 से 60 तक हम उसकी ग्रोथ वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वो 10% बच गए, 20% बच गए, तो भी अपने पास कोई कोई अपन बहुत छोटे छोटे से जैसे बाल हैं, रोए रोए जैसे बाल हैं चारों तरफ, और उग नहीं रहे हैं, लेकिन अपन बहुत सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं सर लेकिन उग नहीं रहे हैं, तो वो दोज आर आइडल कैंडिडेट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरे वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका, जैसे कई लोग होते हैं जिनका माथा बड़ा होता है, जेनेटिकली ब्रॉड होता है फोरहेड, जैसे कोई फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं जिनका जेनेटिकली ब्रॉड फोरहेड होता है, उनको अगर अपने को हेयर लाइन कवर करनी है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के आइडल कैंडिडेट्स होते हैं। पैटर्न बॉल्डनेस से जो सफर कर रहे हैं, बेसिकली जो जेनेटिक पैटर्न से सफर कर रहे हैं मदर फादर के साइड से, जिनको उनमें नहीं है ऑप्शन, उनमें लास्ट ऑप्शन इज हेयर रिस्टोरेशन, तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो आइडल कैंडिडेट्स होते हैं। 21 साल से उम्र बड़ी होनी चाहिए आइडली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। उससे कम की उम्र में हम नॉर्मली भी डोंट डू, क्योंकि पैटर्न बॉल्डनेस बढ़ते रहती है तो बाद में भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने ट्रांसप्लांट भी किया, उसके बाद भी बाद में पता चल रहा है कि गंजापन वापस आ गया और खाली दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो प्राइम कैंडिडेट। और कुछ लोगों को पहले भी ऑलरेडी ट्रांसप्लांट, देखिए क्या होता है जब मल्टीपल सेंटर्स में जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, वेरी फ्यू सेंटर्स में ऑथेंटिक वर्क इज गोइंग ऑन। Rest every center of hair restoration technicians are operating. They are being called as surgeons, and people are getting operated by technicians. So now what happens is transplant का result जो है, it all depends on operating surgeon who is operating, from where you are getting transplant done from. तो उस पे ही डिपेंड करता है। कॉस्टिंग इज नॉट द मेन इशू फॉर ट्रांसप्लांट, हु इज ऑपरेटिंग इज द मेन इशू फॉर ट्रांसप्लांट। तो नॉर्मली जहां जहां मैडम टेक्नीशियंस ऑपरेट करते हैं वहां बॉस्ड अप होता है ट्रांसप्लांट, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो वो उनको रीट्रांसप्लांट करना रहता है। तो दोज आर आल्सो आइडल कैंडिडेट्स फॉर ट्रांसप्लांट, जिनको और डेंसिटी चाहिए, थोड़ा कम हो गया है, डेंसिटी बढ़ानी है, तो दोज आर आइडल कैंडिडेट्स। ओके सर। सर सुरभि शुक्ला इज हियर एंड वो पूछ रही हैं हेलो सर, बालों की सही देखभाल कैसे करें? होम रेमेडीज ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो क्या डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी है? देखिए मैं आपको, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको बेसिक एक हेयर रूटीन बताता हूँ, आप लोग उसी को फॉलो कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
देखिए क्या है, हफ्ते में आप 2 बार बाल धोइए। बाल धोने के लिए देयर आर मल्टीपल शैम्पूज अवेलेबल इन मार्केट। 2-3 बहुत अच्छे शैम्पूज हैं, जैसे एक एक है ट्राइक्लेंस के नाम से आता है क्यूरेशियो का। दूसरा एक अच्छा बहुत अच्छा शैम्पू है लॉजी हेयर बाय कैनेक्सिया फार्मा। ये 2-3 शैम्पूज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिनके मतलब जिससे आपके बाल ड्राई भी नहीं होंगे, बाल अच्छे भी रहेंगे। प्लस दे आर शैम्पू प्लस कंडीशनर, दोनों चीजें मिली हुई हैं, तो आपको बार-बार की एप्लीकेशन की दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, होम रेमेडी में अगर आप हफ्ते में 1 दिन करना चाहें संडे के दिन, तो आप दही या अंडा लगा सकते हैं सिर में, दैट इज़ गुड। उसके अलावा नारियल तेल भी इफ यू वांट टू डू चम्पी-वम्पी करना है, इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, तो भी आप अपने मन को सैटिस्फाई करने के लिए यू कैन डू वन्स इन वीक। हफ्ते में 1 बार आप संडे संडे को धोइए। क्योंकि देखिए मैडम, ज़्यादा अपन बहुत ऑयलिंग भी करेंगे तो वो पूरा ऑयल जो है, वो पूरा चेहरे से बह के नीचे आता है माथे पे। और यंग अडल्ट्स में क्या होता है मैडम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ फॉर एक्ने। जो एक्ने होता है, पिंपल्स होते हैं, माथे पे बहुत उगते हैं बिकॉज़ पीपल बहुत बहुत ऑयल अप्लाई करते हैं, वो पूरा ऑयल बह के चेहरे पे आता है और वो सारे ओपन पोर्स को क्लॉग कर देता है, जिसके कारण पिंपल डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। आप हफ्ते में 2 बार कीजिए। जहाँ आपको लग रहा है कि डैंड्रफ हो रहा है, तो ईदर गो फॉर कीटोकोनाज़ोल। कीटोकोनाज़ोल के शैम्पू होते हैं, सर्टोकोनाज़ोल के शैम्पू होते हैं, या तीसरा है क्लिम्बाज़ोल। क्लिम्बाज़ोल के शैम्पू, ये 3 जो कंटेंट है, इन तीनों कंटेंट में से कोई भी कंटेंट आप मार्केट से ले आइए, उसको 10 मिनट लगा के छोड़िए और बाल धोइए। ऐसा महीने भर तक कीजिए, आपको डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ट्राई करिए कि बालों को जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो ड्राई करके ही सोएं, बहुत ज़्यादा गीले बालों को ना सोएं और बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई ना करें। नॉर्मली बालों को यूज़ करें, कंडीशनर मतलब कंडीशनर कह रहा हूँ, जैसे अपन हॉट ड्रायर यूज़ करते हैं बहुत बार रेगुलर बेसिस पे, या बहुत ज़्यादा आयरन यूज़ करते हैं, तो वो सब ना करें। आपको नॉर्मली बाल को अच्छे से सुखा लीजिए और सो जाइए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। Okay. And sir, you have given all the answers very nicely. Any takeaway message for all our viewers? नथिंग एज़ सच, आप बस थोड़ा-सा हेल्दी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज़ थोड़ा-सा कीजिए, मॉडिफाई लाइफ को थोड़ा कीजिए एंड अच्छे बाल रखिए एंड गुड हैव अ गुड हेल्थ एंड गुड लाइफ। Great, sir. Thank you so much, sir. You're So welcome. thank you so much, Dr. Manjeet Gupta, for your valuable time. It has been a very informative session for all our viewers, and it is great to hear you. We really look forward for many such sessions for our viewers in the coming time. And thank you, viewers, for your participation for today's session. Thank you so much, Doctor, and thank you so much, viewers. Have a good day. Thank you. Pleasure was